Breast cancer is the most common malignancy in India, accounting for around 13.5% of all the cancers reported in our country. When we think about breast cancer, we often think that it is a woman's problem, but even men can be affected by breast cancer. Today, we are going to be talking about breast cancers with special emphasis on male breast cancers. On our podcast today, we have with us Dr. Aditi Agrawal, Senior Consultant Breast Surgeon at Wockhardt Hospital, Mumbai. She has over 12 years of experience and have successfully performed over 1,200 breast surgeries for various pathologies. She is specially renowned for conservative breast surgeries for breast cancer. She is one of the few women surgeons in India to pursue MCH in breast oncoplasty from the University of East Anglia, UK. In addition, she has presented many lectures, papers, and posters in various national and international platforms. She is also involved in charitable work and performance of free conservative breast surgeries for the poor people. Her main area of interest is creating awareness about breast cancer among school children and college students, for which she takes part in many awareness programs. We also have with us Dr. Smita Karpate, MT, who is the founder of Health Commune. Early detection of cancer saves lives. Join us to beat cancer before it beats you. I want to start talking more about this thing which I have got to know from your own podcast. Okay, like one of the video that you have posted on Facebook, which was about the breast cancer in men. And I thought that's very interesting to know and find out where are we and how to create awareness about that, because most of the people are not aware. So what we did is in our own team, we have a couple of doctors, we have developers, designers, everyone, and we just say, and everyone was like, तो जब मैंने एक मेल ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट किया इन अ हॉस्पिटल एज बिग एज वोकहार्ट, ठीक है, दे लाइक नहीं मैडम, हमारे लिए तो शॉकिंग है कि मेल पेशेंट को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. मेरी ओटी स्टाफ इज वेरी वेल क्वालिफाइड, ट्रेन फ्रॉम टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स फ्रॉम मुंबई. शी इज ऑल्सो लाइक नहीं मैडम, आज मैं स्क्रब अप होंगी, हमने कभी मेल ब्रेस्ट कैंसर देखा नहीं. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 1% ऑफ ऑल न्यूली डिटेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर्स is approximately the number of male breast cancer. wow. So अगर हम 100 breast cancer detect कर रहे हैं तो उसमें से एक male breast cancer होगा. Okay. तो number is not less, it's huge. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फीमेल्स के ब्रेस्ट बड़े होते हैं एंड एक जगह है जहाँ पर हमें फैट बहुत पसंद है, दैट इज ब्रेस्ट. ठीक है, अदरवाइज हम सभी फीमेल्स फैट को डिटेस्ट करती है, बट मोर द फैट बेटर फॉर अस एज फार एज ब्रेस्ट इज कंसर्न. तो मेल्स के अंदर ना फैट नहीं होता है कि ब्रेस्ट बहुत छोटे होते हैं. प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम काफ़ी बार उसको सिर्फ चेस्ट कहते हैं, तो बहुत बार वो मिस आउट हो जाता है. तो काफ़ी बार मुझे ना ये मेल ब्रेस्ट कैंसर चेस्ट फिजिशियन के पास से मिलते हैं. Okay. क्योंकि हाँ उन्हें लगता है कि चेस्ट में लंप है. इंडिया में टीबी का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें लगता है ये शायद चेस्ट में कुछ लंप है, तो वो काफ़ी बार चेस्ट फिजिशियंस के पास पहुंचते हैं दिखाने के लिए कि ये क्या है. मुझे अच्छे से याद है, एक यूपी की हेल्थ मिनिस्ट्री से एक पेशेंट था, बेटा मुंबई में रहता था, इंजीनियर था, तो उससे मिलने आया था. तो ही केम टू मी विद अ लंप. मैंने लंप, What was his age? ही वाज 70 years. Okay. ये केस मेरा न्यूज़पेपर्स में भी आया था बिकॉज वो हेल्थ मिनिस्ट्री का था. जब वो आए मेरे पास, आई वॉज नियर कॉन्फिडेंट कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. बट बहुत बार क्या होता है ना, हम कभी पेशेंट को डायरेक्टली कहते नहीं हैं जब तक कि हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजिकल या बायोप्सी प्रूफ नहीं. मैं कभी नहीं कहती इवन इफ सस्पिशन इज हाई. सिर्फ हम पेशेंट को एक आइडिया देते हैं कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार ना पेशेंट्स बहुत लाइटली ले लेते हैं कि अच्छा कुछ है ना, देखेंगे. अभी छुट्टियाँ नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स है, बहुत सारे कारण है, शादी है, आते नहीं है, तो इसलिए हम आइडिया दे देते. मैंने उसके बेटे को कहा था मुझे गांठ अच्छी नहीं लग रही है, मामोग्राफी करेंगे. मेल्स के लिए हम आइडली रिकमेंड करते हैं अगर उन्हें स्तन में, ब्रेस्ट में कहीं पे गांठ है, 25 साल की उम्र के बाद हम मामोग्राफी स्टार्ट करते हैं. फीमेल्स में हम 40 की बात करते हैं, बट मेल्स अगर हमारे पास आते हैं तो 25 के बाद हम करते हैं. मामोग्राफी कराया, मामोग्राफी में क्लासिकली एक गांठ दिख रही थी. फिर आई वेंट अहेड, आई डिड अ बायोप्सी.
बायोप्सी में कैंसर। तो एक बार जब मैंने कैंसर डिक्लेयर किया, 70-year-old वाले मेरे अंकल वाज एकदम बैफल्ड, ये हो ही नहीं सकता, मतलब फिर कहा नहीं उन्होंने, बट उनके रिएक्शन से मुझे समझ में आ रहा, तो सोच रहे थे कि ये डॉक्टर पागल है या इसका सटक गया है जो ये कह रही है कि मुझे कैंसर है। एनीवेज, लकीली फॉर मी बेटा थोड़ा समझदार था। बेटे ने मुझे कहा, हाँ मैडम, वी कम बैक टू यू। देन इवनिंग में ही मैसेज में कि मैडम मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो मैंने उन्हें समझाया कि ये कैंसर है, मेल्स में बहुत रेयर है, बट आप ऑनलाइन जाइए, आप गूगल कीजिए। तो हम गूगल को हमारा एनिमी नहीं समझते हैं। वी हैव लर्न कि बहुत बार पेशेंट का फेथ हमसे ज़्यादा कभी कभी गूगल के ऊपर भी आता है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं आपको टर्म्स लिख के देती, आप इसके बारे में गूगल कीजिए, आप पढ़िए, फिर आप मुझे आके मिलिए आपके फादर के साथ विथ ऑल योर क्वेश्चंस एंड हम सेटल करेंगे। तो फिर ही केम बैक विथ हिज फादर विथ ऑल द क्वेश्चन। फिर उनका कंसर्न था कि मैडम आप निकालेंगे तो दिखेगा कैसे। तो लकीली मेरे पास मेरे प्रायर पेशेंट्स की फोटोग्राफ्स थे। तो उसमें मैंने बताया कि सिर्फ वो जो ब्लैक पार्ट रहता है जिसको हम निपल एरिया कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो जाता है एंड फिर वो चेस्ट पूरा फ्लैट हो जाता है। फीमेल्स में तो हम काफ़ी बार टैटूइंग भी करके वो निपल एरिया कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैंने उन्हें ये ऑप्शंस दिया था। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं पे आइडिया था कि नॉट गो फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शंस। तो somehow we agreed for getting the breast out, and our son was like, मुझे 2 या 3 पैथोलॉजिस्ट का ओपिनियन चाहिए। I said it's okay, you please go ahead। and जब उनका भी ओपिनियन सेम आया, so like मुंबई में most respected for us is डॉक्टर अनीता बोचिस। उनके पास सैंपल भेजा, हमने सेकेंड ओपिनियन लिया, एंड देन ही वाज लाइक ओके। सर्जरी करने के बाद हिज फर्स्ट कंसर्न वाज ड्रेसिंग के बाद कैसा दिखेगा। So when I removed it and realized it was just a flat chest with the missing nipple areola complex, he accepted. हाँ, but that's the thing कि मेल ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस नहीं है। Another important thing is मेल ब्रेस्ट कैंसर्स यूजुअली हमको 50 साल की उम्र के बाद दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पेशेंट्स काफ़ी बार ओबेस रहते हैं। अभी तक हमारी जितनी स्टडीज़ है उनका मानना है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होने के कारण इन मेल्स में ये मिलता है। काफ़ी बार इन्हें कुछ टेस्टिकुलर इश्यूज भी रहते हैं। बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं। तो बाय रूल अगर हम किसी मेल ब्रेस्ट कैंसर को ऑपरेट करते हैं, हम इन पेशेंट्स का जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। एंड काफ़ी बार अगर आप पीछे जाके उनसे हिस्ट्री पूछोगे तो वो बताएंगे कि उनकी घर की किसी औरतों कभी ब्रेस्ट कैंसर रहा होगा। सो समवेयर जेनेटिकली शायद इन्होंने इनहेरिट किया होगा। अग्रीड, सारे जेनेटिकली नहीं रहते हैं। लाइक फीमेल्स के अंदर तो हम कहते हैं कि नियरली 5 to 10% इज हेरिडिटरी या जेनेटिकली रहते हैं। मेल्स का एक्चुअली इतना स्टडीज हुआ नहीं है, तो हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। तो ना सिर्फ लेमैन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है मेल ब्रेस्ट कैंसर्स के ऊपर। सो आई थिंक वी हैव टू वेट। हाँ, बट नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। जैसे हम फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कर रहे हैं, वी आर टारगेटिंग टू डू द सेम इवन इन मेल ब्रेस्ट। तो वी आर लुकिंग आउट कि अगर हमें छोटे ब्रेस्ट कैंसर्स मिल रहे हैं तो वी आर टारगेटिंग अगर उनमें भी हम ब्रेस्ट बचा के सर्जरी कर सकें। फीमेल्स के अंदर तो बहुत सारी जगह है जहाँ से हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डिलीवरी के बाद एवरीबडी इज नॉट फिट लाइक यू, बट ऑल ऑफ अस हैव अ गुड एब्डोमिनल पेनिस। डिलीवरी के बाद एक एब्डोमेन पे ना एक लेयर ऑफ फैट हम मैक्सिमम फीमेल्स हैव इट, तो उसको हम यूज़ करके न्यू ब्रेस्ट बनाते हैं। सो इट्स लाइक हाउ आई टेल माई पेशेंट्स इज फ्री एब्डोमिनल टक सर्जरी हम करेंगे एंड वी आर रिकन्स्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्रेस्ट। कुछ फीमेल्स रहती है जो आपकी जैसी स्लिम ट्रिम रहती हैं, लॉट ऑफ देम इनर थाई में फैट रहता है, तो वी यूज दैट। कुछ फीमेल्स के बटक में फैट रहता है, तो वी यूज दैट। सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वी कैन डू इट। इम्प्लांट भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। हाँ, वी प्रेफर नेचुरल टिश्यू बिकॉज लास्टिंग वाइज दे लास्ट बेटर। थोड़ा हॉस्पिटल टाइम इनिशियली ज़्यादा जाता है, मतलब समवेयर maybe 5 to 7 days of admission in the hospital। हाँ, बट एक बार आपकी बॉडी ने आपके बॉडी का दूसरा पार्ट एक्सेप्ट कर लिया है इस लाइफ। नो रीसर्जरीज। implants have their own issues, their own complications, and I think as a breast oncosurgeon and oncoplastic surgeon, मेरा preference is for a flap surgery। Okay. ठीक है,
फ्लैप सर्जरीज मैं यूजुअली मेरे कलीग प्लास्टिक सर्जन्स के साथ करती हूँ जब हम इतने बड़े सर्जरीज करते हैं, बिकॉज हमें यूजुअली एनीवेयर 12 to 16 आवर्स जाते हैं उतने, तो दीज आर बिग सर्जरीज। इसमें हम जो पेशेंट रहता है उसका स्किन हम रखते हैं जिसको हम कहते हैं स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी एंड निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टमी। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें हमें काफ़ी बार पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, आइदर ट्यूमर इतना बड़ा है या अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि DCIS, जिसे हम काफ़ी बार स्टेज 0 का कैंसर कहते हैं, वो पूरे ब्रेस्ट तक स्प्रेड आउट है। तो हमें उस केसेस के अंदर ये अलग अलग जगह से फैट या फ्लैप लेके हमें सर्जरीज करनी पड़ती है। Another simplest option is इंडिया में भी आई कैन टेल यू अवेयरनेस बढ़ रहा है। हम काफ़ी बार औरतों को सिखाते हैं, मतलब एज माई सोशल वर्क आई ट्रेन यंग गर्ल्स फ्रॉम द एज ऑफ 18 years टू स्टार्ट डूइंग समथिंग नोन एज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। मतलब खुद से वो खुद के स्तन की जांच करते हैं 18 साल की उम्र के बाद से, तो उन्हें पता है उनके लिए नॉर्मल क्या है। तो कुछ भी अबनॉर्मल होता है, साइज या शेप में चेंज होता है, या कभी निपल डिस्चार्ज आने लगता है, निपल जो पहले बाहर था अंदर घुस गया है, या कोई पार्ट जो पहले अच्छा खासा बाहर था अंदर आ गया है, या कोई पार्ट जो फ्लैट था पहले वो भर गया है। तो ये सारे चेंजेस वो पिकअप कर सकते हैं। एंड सिंपल है, जब आपके टिप्स ऑफ फिंगर्स फील कर रहे हैं कोई चीज़ हर महीने, तो उन्हें समझ में आता है नॉर्मल क्या है, एंड कोई चीज़ डिफरेंट हुई है तो उन्हें पता चलता है। तो वो हमारे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट वे है कि कोई हमें आके बताए कुछ तो चेंज हुआ है। एंड एक बार वो आते हैं, अगर लेस देन 40 years है हम सोनोग्राफी कराते हैं, मोर देन 40 years है हम एक्सरे मामोग्राफी करा के कंफर्म करते हैं कि उनका जो सोच है वैसा कुछ है। या काफ़ी बार इनफैक्ट अगर मेरे पास 10 औरतें आ रही है प्रॉब्लम लेके, 90 मतलब 10 में से विल से 9 को कुछ भी नहीं रहेगा, इट विल बी समथिंग बिनाइन नॉन कैंसरस, जो काफ़ी बार सिर्फ रीअश्योरेंस या उन्हें समझा के कि ये हार्मोनल चेंजेस के कारण है ड्यू टू विद। कभी कभार वो सादी गांठ होती है जिसे हम फाइब्रो एडेनोमा कहते हैं, बहुत छोटी रहती है तो उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं लगती, सिर्फ फॉलोअप पे रहते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ी है तो उसे काफ़ी बार सर्जरी लगती है, जो सिंपल डे केयर भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में एडमिट किया, सर्जरी किया, बाय इवनिंग दे कैन गो। कभी कभी सिस्ट रहता है, सिंपल लैंग्वेज में पानी का भरा हुआ गुब्बारा, तो हम सिर्फ गुब्बारा फोड़ते हैं, मतलब सिर्फ एस्पिरेट करते हैं, दैट्स इनफ होते हैं। वो भी अगर वो उनको ट्रबल दे रहा है तो, ट्रबल नहीं दे रहा तो वी जस्ट लीव इट लाइक दैट, जस्ट अ रूटीन यानी फॉलो अप पे रखते हैं। सो सिंपल 90% ऑफ द टाइम्स आपको कुछ नहीं होने वाला है। सो इट्स ओनली द 10% फॉर विच वी आर वरीड। तो अगर प्रॉपर लंप है जो हमें पाल्पेबल है तो हम बायोप्सी करते हैं, मतलब उसमें से कुछ पीसेस निकालते हैं एंड वो टेस्टिंग को जाता है। सेकेंड ऑप्शन रहता है, अगर वो पाल्पेबल नहीं है, सिर्फ USG पे दिख रहा है या मैमोग्राफी पे दिख रहा है, तो फिर हम हमारे रेडियोलॉजिस्ट कलीग्स की हेल्प लेते हैं। अगर USG गाइडेड ये बायोप्सी करते हैं या फिर मैमोग्राफी गाइडेड करते हैं। बहुत छोटी लीजन्स हैं तो इंडिया में कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर हम वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सीज भी करते हैं, दे प्रीटी कॉस्टली। तो इफ़ पॉसिबल हम USG मैमोग्राफी गाइडेड, उसमें हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम हो जाता है। ओके सो हाँ, माई स्पेशलिटी इज ऑन्कोप्लास्टी, दैट इज लोकल फ्लैप्स। तो जिन औरतों की बहुत छोटी गांठें रहती हैं, हम वो गांठ को निकालते हैं जिसको हम आइदर वाइड लोकल एक्सिजन कहते हैं, एंड सेम टाइम से वो फीमेल का आजू बाजू से टिश्यू डाल के वी रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट इन सच अ वे कि इट इज कंपैरेबल टू अ नॉर्मल ब्रेस्ट। एंड इवन दो ब्रेस्ट में मतलब वो लेडी को कैंसर है, वी डोंट ट्रीट इट लाइक कैंसर, वी टेक केयर ऑफ द कॉस्मेसिस। तो हम काफ़ी बार स्कार्स इस तरीके से लेते हैं कि इट्स डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक आउट इन फ्यूचर कि उसकी सर्जरी हुई है। सो वी टॉक अबाउट हिडन स्कार कैंसर सर्जरीज नाउ। I can tell you, breast cancer surgeries and breast surgeries have come along. Compared to other cancers, we are doing far better. Yeah. And longevity भी हमारे patients की बहुत अच्छी। So coming back to the cancer, breast cancer in men, do you see, like you're practicing for so many years, do you see that the prevalence or trend is increasing? Are you able to see? Yes, the trend is increasing.
My thought on that is, if you go to see the longevity is also increasing. I think जब हम पढ़ रहे थे तब हम एवरेज लाइफ स्पैन 63-64 की बात कर रहे थे. आज इंडिया का लाइफ स्पैन हम 83-84 की बात कर रहे हैं. तो people are living long, so they're developing diseases also more, and maybe our pickup rates are increasing. And if you see, especially after COVID, लोग अपनी हेल्थ को सीरियसली ले रहे हैं. जिम्स के नंबर्स बढ़ गए, हेल्थ चेकअप्स के नंबर्स बढ़ गए हैं, तो हम बहुत अर्ली भी पिकअप कर पा रहे हैं. एंड मे बी बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, वी आर पिकिंग अप मोर डिजीज. एंड हमारा वेस्टर्नाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑल्सो टू दिस डिजीज. Okay. Fine. So initially we would see females in very later part, मतलब 40-50 के पहले तो हम कभी सोचते भी नहीं थे कि उस औरत को कैंसर होगा. Youngest female patient that I've operated with breast cancer is 20. Oh, हाँ. मतलब अगर आपके घर में कोई बच्ची है जो कह रही है लंप है, डोंट इग्नोर इट, गेट इट चेक, कंफर्म कि उसके ऊपर हम बैठ सकते हैं या नहीं. So got it. आर चेंज. Got it. So when, like you said, one of the patient was 70, and also for the breast cancer in men, and also the 50 is a more common age. So is it more for the aging related disease that we are talking about? Yes, frankly speaking, पहले तो फीमेल्स में भी यही ट्रेंड था कि 50 के बाद ही हमको मिलता था, बट अभी हमें यंग फीमेल्स मिल रही है. सो एट प्रेजेंट मेल्स का हमारे पास जितना भी डेटा है वो कहता है कि 50 के बाद मे बी हार्मोनल सर्ज, ईस्ट्रोजन वगैरह बढ़ जाता है, इसके लिए हमें 50 के बाद मिलते हैं. It's there. Okay. So what are the most common symptoms by which patients are presenting it to you? सबसे कॉमन सिम्टम होता है ना. ओके, मेल हो या फीमेल हो, वो काफ़ी बार नहाते टाइम पे साबुन लगा रहे या कुछ, तो दे नोटिस अ नफ or something abnormal. That is the commonest symptom which they come in. Change in size and shape is another. Nipple discharge is another important symptom. तो औरतें खुद से अपना निपल हर महीने दबा दबा के चेक करती, डिस्चार्ज आता है कि डोंट रिकमेंड दैट. हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपके अंडरगारमेंट्स स्टेन हो रहे हैं डिस्चार्ज से तो आइए. काफ़ी बार क्या होता है ना, औरतों ने बहुत लंबे टाइम तक बच्चों को दूध पिलाया है, तो वो जो डक्ट्स रहते हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं. एंड अगर आप उनको हर बार इरिटेट करोगे दबा दबा के, तो थोड़ा बहुत रेसिडुअल सिक्रीशन या कुछ रहता है वो आता है. सो हम उसके लिए नहीं देखते. वी टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस निपल डिस्चार्ज, मतलब जो अपने आप से आ रहा है, आपके अंडरगारमेंट्स को स्टेन कर रहा हो. तो हम औरतों को कहते हैं, मतलब नाइट में सोने के पहले आप चेक कीजिए एंड मॉर्निंग में चेक कीजिए कि आपने जो भी नाइट ड्रेस पहना है उस पर स्टेनिंग आई है क्या. Correct. So that for us is significant. Correct. And same is applicable for men as well, right? Like if they have a discharge, and if it is, you know, if they check if the discharge is there. I believe everything holds true for males also. Only thing is I think उनका नंबर कम है, इसके लिए हमने उन्हें शायद इग्नोर किया. Yeah. So if they are presenting with these symptoms to you, I think the first thing that you do is, what was the first investigation that you suggest? क्लिनिको रेडियोलॉजिको पैथोलॉजिकल कोरिलेशन. सो क्लिनिकली तो हम खुद एग्जामिन करके देखते हैं. रेडियोलॉजिकली एज आई सेड बिफोर, less than 40 we get an ultrasound done, more than 40 we get an X-ray mammography done. Males में after the age of 25 we get an X-ray mammography. Okay. एक मुझे मतलब नॉर्मल जब पढ़ा करते थे उस दिन बताया, उस टाइम पे देखते थे कि इन कैंसर देयर इज अ लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. And but when we talk about the breast cancer, it's also correlated with obesity. तो लॉस ऑफ वेट तो नोटिस नहीं होता होगा एकदम इनिशियल लेवल पे, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी आई डू नॉट नो. सो आर दीज सिम्टम्स आर स्टिल रिलेवेंट और मे बी देयर समवेयर रिलेवेंट. ठीक है, आई थिंक आपके और मेरे आंसर बुक्स में लिखने के लिए काफ़ी रिलेवेंट. ठीक है, फॉर एवरी कैंसर. बट फ्रैंकली स्पीकिंग हम इतना पूछते नहीं हैं. स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स ना काफ़ी बार काफ़ी जल्दी आते हैं. तो मे बी आप GI कैंसर्स ये सब के अंदर आई थिंक वी प्रीडोमिनेंटली लुक एट दीज सिम्टम्स. इनमें कभी कभार हमारे कोई पेशेंट्स कह देते हैं कि वेट लॉस भी हो रहा है ये, तो आर सस्पिशन लेवल डेफिनेटली राइज. Correct. One thing I really like when you were explaining, in girls, right from the age of 18, you are teaching that, okay, do the self-stress examination. Till now, even I was under impression that you have to do it occasionally. But one good thing I have learned just today is, if you are doing it regularly, if you get used to what is normal,
And then it is easy for you to detect something abnormal. Yes, so we have specific days also. Anywhere between 5th to 10th day, you can do your self-breast examination. By 5th to 10th day, after your periods, your breasts are soft. So it's easy for you to pick up any lump. Correct. So with the tips of your fingers, you're supposed to examine your breast from where. So this is the center part, from here till your underarms. So we teach them that you're supposed to make a 1 rupee coin. एक रुपए का सिक्का जैसा आपको सर्कुलर बनाना, and आप एक पैटर्न फॉलो करोगे, ठीक है? Down to up to down to up, something like that, ठीक है? 2 areas which are missed is nipple areola complex के नीचे और underarm, ठीक है? So up to down, you medial to lateral to medial. दोनों में से कोई भी एक सीक्वेंस आप पकड़िए, उसमें कीजिए. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स नहाते टाइम पे कंफर्टेबल रहती है एग्जामिन करने को. हम उन्हें काफ़ी बार कहते हैं कि मिरर के सामने कीजिए. सेकेंड थिंग इज हाथ पर उठाइए, ठीक है? सो वी एडवाइज देम टू लिफ्ट देयर हैंड्स अप एट टू चेक. तो काफ़ी बार औरतें जिनकी ब्रेस्ट बड़े भी होते हैं, उनको कहते हैं ब्रेस्ट को ऊपर लिफ्ट भी करके आप देखिए. तो काफ़ी बार अगर लक नीचे रहता है तो उनसे मिस होता है, अगर वो ऊपर लिफ्ट करके नहीं देखते हैं लोग. तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो हम रिकमेंड करते हैं लड़कियों को अर्ली एज से स्टार्ट करने. And then I think even men can do this practice if they have a family history or something. It's always good to examine yourself, right? And it just takes nothing, right? Like after your shower, this, and good part is men do not have to be dependent on their menstrual cycle. They have to, yeah, so they can check whenever they want. One day we can fix it. Correct. And that's amazing. So now when you diagnose, okay, so after that, what's the first thing patient is supposed to understand or the decision that they have to take? So first, mammography ये हो गया. Next is we go ahead with the biopsy. Biopsy OPD basis procedure होता है. We have specialized guns, core needle biopsy guns आती है. The procedure hardly takes 5 minutes. हम local anesthesia देते हैं. उसमें से we remove nearly 4 or 5 cores, which goes for testing. तो हमें ये पता चलता है कि एक कैंसर है या नहीं है, और अगर कैंसर है तो कौन सी टाइप का कैंसर है. सो डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी टाइप का कैंसर है, तो हम डिसाइड अप करते हैं कि पहले हमें सर्जरी के लिए लेना है पेशेंट को, या हमें पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी लगाना है. अभी लास्ट डेकेड के अंदर बहुत सारा एविडेंस चेंज हुआ है. तो कुछ कैंसर्स है जिसमें हमने रियलाइज़ किया है कि अगर हम पेशेंट को कीमोथेरेपी पहले देते हैं, हमारे पास कुछ नए ड्रग्स हैं कि अगर उनका कैंसर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया है, हम वो नए ड्रग्स दे सकते हैं जिससे हमारे पेशेंट्स की लाइफ बढ़ती है. बेसिकली हमारा आइडिया ये सब ट्रीटमेंट करने का है लॉन्गेटिविटी. जितना हम पेशेंट की लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं उतना पेशेंट बेनिफिट करता है. प्लस वी आर हैप्पी टू नो दैट अ पेशेंट इज लिविंग लॉन्ग. तो वो पर्पस है. तो इसके लिए फॉर अस इट्स नेसेसरी टू नो कैंसर है या नहीं, कौन सी टाइप. ओके. वो कितने दिनों में पेशेंट ने सर्जरी करना चाहिए? वी आर लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, ठीक है? यूके वगैरह में तो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है अपनी ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी की, वहाँ पे हमें 1 महीने का टाइम मिलता था कि 1 महीने के अंदर पेशेंट अगर आपके पास है आपको करना है. मुंबई के अंदर वी रिकमेंड टू पेशेंट्स एज सुन एज पॉसिबल, बट हमें बेसिक वर्कअप भी करना रहता है. बायोप्सी आई है प्रूवन. काफ़ी बार बायोप्सी का रिपोर्ट जब हम पेशेंट्स को बताते हैं, इट्स अ बिग डिसीजन फॉर देम. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबिलिटी को कम से कम 2-3 दिन जाता है. मतलब फर्स्ट टाइम जब पेशेंट आता है मेरे पास ओपीडी में, जब मैं उन्हें बताती हूँ कि ये आपका रिपोर्ट है, इट्स लाइक ब्रेकिंग द बैड न्यूज़. दे टेक सम टाइम टू एब्सॉर्ब दैट न्यूज़, ठीक है? समवेयर उन्हें थोड़ा आइडिया लग जाता है जब हम मैमोग्राफी करा रहे हैं, बायोप्सी करा रहे हैं. बट फिर हाँ, डॉक्टर की मुँह से सुनना वो वर्ड कैंसर इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट. उसके बाद में हम पूरा फिटनेस वर्कअप कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड एवरीथिंग. प्लस we follow up a trend because India के अंदर PET scan is easily available, at least in city like Mumbai it's easily available. हम काफ़ी बार जिन पेशेंट्स का कैंसर lymph nodes तक spread up है, मतलब locally advanced है, हम उनमें compulsorily PET scan कराते हैं. PET scan is CT scan of the whole body, जो हमें हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि और कहीं पर भी कैंसर स्प्रेड अप है क्या. काफ़ी बार अगर मेटास्टैटिक कैंसर है, मतलब और कहीं पे स्प्रेड अप है, तो हमारा मैनेजमेंट चेंज हो सकता है. तो इसके लिए हम वो पहले ही कराते हैं. कुछ पेशेंट्स के अंदर, जैसे यंग पेशेंट है, ब्रेस्ट में लंप है, वो ब्रेस्ट बचा के सर्जरी कराना चाहती है. ब्रेस्ट बहुत डेंस है, ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करने के पहले हमें श्योर होना पड़ता है कि एक ही जगह पर कैंसर है.
पूरा ब्रेस्ट में कैंसर तो नहीं है। उसके लिए काफ़ी बार MRI ब्रेस्ट विद ब्रेस्ट कॉइल्स कराते हैं, जो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें आगे सर्जरी के लिए क्या प्लानिंग करना है। सो दीज आर फ्यू इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सब कराते कराते हमारा काफ़ी बार 1 हफ्ता निकल जाता है। एल्डरली फीमेल्स हैं, मास्टेक्टमी के लिए ऑप्ट ऑफ कर रही है या कुछ, तो समवेयर वी हैव अ क्लैरिटी कि उनकी मास्टेक्टमी करना है, तो एट द मोस्ट हम पेट स्कैन कराएंगे, MRI वगैरह नहीं कराएंगे, तो वी सेव अप ऑन द टाइम। सेकेंड थिंग, दोनों पेट स्कैन और MRI में हम डाई देते हैं, तो बोथ कैन नॉट बी डन ऑन द सेम डे, देयर हैज टू बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट अ डे। टाइम जाता So almost एक हफ्ता लग जाता है to do all the investigations. है, मोर मे बी कम से कम 3-4 दिन तक पकड़िए। Correct. हाँ. हाँ, उतने में हो जाता है। एंड पीक वाइल वी कैन प्लान। इम्पोर्टेंट थिंग इज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस कवर अप योर कैंसर ट्रीटमेंट। तो अगर पेशेंट्स हैं जिनके पास इंश्योरेंस है, आई आस्क देम यू कैन डेफिनेटली यूज योर इंश्योरेंस। रिकंस्ट्रक्शंस भी जब हम करते हैं, रूटीन जो हम करते हैं क्लोज बाय फ्लैप्स वगैरह से, वो सब इजीली एक्सेप्ट होता है। जो हम बड़ी सर्जरीज करते हैं, पूरा एब्डोमेन का फ्लैप लेते हैं, वो सब दैट इज ऑल्सो कवर्ड बाय इंश्योरेंस। अगर वी आर डूइंग इट एज अ पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, कवर होता। सो दैट्स द थिंग। People who go for delayed reconstructions, उनको मेडिक्लेम कवर नहीं करता, but as a part of cancer treatment it is covered. Correct. So it's like planning. कि अगर आप सर्जरी कर रहे हैं, if you are planning to go for the reconstructive surgery in future, then get it done to the same thing, ताकि completely coverage भी आप One first female patient जिनका मैंने DIP इतना बड़ा reconstruction किया था, she was a 33-year-old female diagnosed with cancer, ठीक है। तो I told her कि about reconstruction. She said मैं करेंगे, but हो सकता है मैं बाद में करूँ। So the moment I told her कि देखिए अगर आप अभी कराते हैं तो मेडिक्लेम कवर अप करेगा, बट अगर आप लेटर डेट पे कराते हैं तो मेडिक्लेम माइट नॉट कवर अप। एंड आई थिंक आई प्लान्ड अप हर सर्जरी इन 2 days। तो शी इज लाइक मैडम गिव मी अ डे, मुझे आज रात तक का समय दो। आई स्पोक विद हर इन द आफ्टरनून, शी इज लाइक मैं कंफर्म अप करूँ। शी मैनेज टू कन्विंस हर हस्बैंड, शी मैनेज टू कन्विंस हर इन-लॉज कि आपको कुछ पॉकेट से पे नहीं करना है, आई वुड लाइक टू हैव माई ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट। एंड बहुत बार ना फीमेल्स का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है टू हैव देयर ओन ब्रेस्ट, सो दे आर मोर हैप्पी। एंड इफ वी डू द रिकंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम, उन्हें कहीं पे वो फील ही नहीं आता है कि दे हैव लॉस्ट देयर। वी फील इट्स easy acceptability, socially they're able to stand at the same level, emotional turmoil वगैरह कुछ नहीं है, no physical disability. In fact you'll be shocked to know अगर आप एक साइड का ब्रेस्ट निकालते हैं तो बिकॉज एक साइड में वेट मिसिंग है, एक साइड में वेट है, lot of females have lot of backache issues. So yes, so it's basically एक साइड में वेट है, ठीक है, उस साइड में झुकने वाले वेट ज़्यादा है, मतलब झुकोगे तो उसके कारण बैक ये सब इश्यूज बहुत होते हैं। एंड स्पेशली ये फीमेल्स का हेवी ब्रेस्ट होता है, लाइक फीमेल्स जो डी कप ब्रास पहनती है, डबल डी कप पहनती, दे हैव अ हेल लॉट ऑफ टाइम। सो अगर हम उनका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शंस नहीं करते हैं तो आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस मिलते हैं, सिलिकॉन की मिलते हैं, तो वी गेट दैट कस्टमाइज्ड फॉर देम सो दे कैन वेयर दैट। प्लस जिनके छोटे ब्रेस्ट रहते हैं वी इंश्योर कॉटन सॉफ्टीज मिलते हैं, make them wear that. The basic idea is अगर वो फीमेल को एहसास है that she is not lost her femininity. Yeah, and why do you even associate your femininity with one of the organ in your body? But yeah, we will take years to actually Yes, accepted. हाँ, but these things are easily available. We make them use it. True. Starting with resistance रहता है, but बाद में accept कर। And when we talk about the reconstructive surgery in men, we are talking about what? So men के अंदर frankly speaking अभी we've just started up the work. तो we can use tissues from the surrounding area and do it. हाँ, problem is most of the men have very small breasts. In fact जिनके बड़े breasts होते हैं हम उसको कहते हैं gynecomastia, ठीक है, what they call it as female boobs, ठीक है, so that we don't get to see. तो men के अंदर lot of times local flaps are enough, जो हम females के अंदर oncoplasty के part में करते हैं, that is it. We don't need that good amount of fat for it, so that's it. So when you finish your complete fitness workup and all, so the surgery, how long it lasts? Like it's a long surgery in men, or it is similar to women, It's or similar. different? In fact, I can tell you when would be faster. Okay. Breast sizes. So we complete this. Okay, and for how many days then patient needs to be in the hospital?
To be straight, next day our patients can go. Okay. Yes. All of our patients go next day and they go home with the drape, be it a male or female. In India, till now, we don't have a trend of daycare surgeries. ठीक है, क्योंकि where I did my training, if we are operating the patient in the morning, night तक the patient would walk back home. Okay. आफ्टरनून में अगर हम ऑपरेट करते थे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाता था. इन इंडिया एटलीस्ट आज अगर मैं ऑपरेट कर रही हूँ, नेक्स्ट डे हम घर भेज देंगे. lot of times even for insurance reasons we have to keep the patient overnight. So when I explain to my patient, I always tell them, अगर आपकी सर्जरी में सुबह कर रही है तो आपको शाम को रात को पूरा खाना खिलाने है. So that is the comfort level. Nice. And all our surgeries are done under general anesthesia. So they're pretty comfortable. Okay. Only thing is they have a drape because fat melt होता है, ठीक है, lymphatics melt होते हैं because हम lymph nodes निकालते हैं, तो उसके लिए हम drain लगते हैं. Usually maximum is 10 days for female patient. Males में तो हम 4-5 दिन में निकाल पाते हैं. Okay. We were talking about कि patient का अगर diagnosis हो गया, then the surgery, and they are usually in the hospital and they can even get discharged next day itself. Drain will be there for around like 5 days. They have to come. Full breast if I'm doing mastectomy, 10 days. 10 days तक drain रहेगा, which they need to. Anything specifically a family need to take care when the patient is getting discharged and for those initial days, do they have to prepare anything? It's Nothing. Frankly speaking, drain के लिए भी ना, I make my patients tie something like a नाड़ा रहता है ना, वैसा बांधते हैं and वो drape को उसमें लटका देते हैं. तो पेशेंट को बोलते हैं either आपके पास घर पे लूज कुर्ता है तो वो पहनिए. So Catholic patients वगैरह को अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं, या lot of people now even in India wear a lot of western shirts and all, so we tell them open button वाला shirts पहनिए, तो आराम से हिडन रहता है. So अगर वो फीमेल कंफर्टेबल है, घर के काम करना चाहती है, सब कुछ भी परमिट, देन आप जितना एक्टिव रहेंगे ना, आप उतने मेंटली कंपोज रहेंगे. तो हम बिफोर डिस्चार्ज में हर बार रिलेटिव्स को समझाती हूँ कि डोंट ट्रीट हर लाइक पेशेंट. उसको वो फील मत दो कि उसका कैंसर सर्जरी हुआ है, वो खुद का सब कुछ आराम से कर सकती है, कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है. उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो सब कुछ कर सकती है. तो अगर वो नीचे वॉक को भी जाना चाहती है, हम कहते हैं आप जा सकते हैं. सर्जरी के बाद देयर इज़ नो रिस्क कि आप दूसरे पेशेंट से इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनको कोई रिस्क है क्या? एब्सोल्युटली नो रिस्क, बिकॉज इन्हें कैंसर हुआ है, ये उन्हें कुछ स्प्रेड अप करेंगे. शी कैन लिव अ नॉर्मल. तो पेशेंट जब ड्रेन के साथ घर पे है, दे कैन गो फॉर अ वॉक इफ दे फील लाइक टू. इट्स लाइक एनी अदर सर्जरी दैट वी हैव टू ट्रीट लाइक. और फिर फॉलोअप के लिए 5-6 दिन बाद यूजुअली जब हम डिस्चार्ज करते हैं, अगर नेक्स्ट डे गई है डिस्चार्ज, तो हम उसको पोस्ट ऑप डे 4 वगैरह पे फॉलोअप को एक चेक ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं. एंड यूजुअली फिर 10th डे के ऊपर जिस दिन ड्रेन निकालना है, उसी दिन मैं पेशेंट को बुलाती हूँ. तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका पूरा हिस्टोपैथ का रिपोर्ट भी आ जाता है. मैं सेल्फ मेल्टिंग स्टिचेस डालती हूँ. बेसिकली मैं मेरे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बुलाती नहीं हूँ फॉलोअप्स के लिए इनिशियल फेज में पोस्ट सर्जरी. तो वो सेल्फ मेल्टिंग स्टिचेस रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पेशेंट्स मुझसे 10th-11th डे पे फ्री हो जाते हैं. अनटिल एंड अनलेस कुछ वुंड इश्यूज है तो उन्हें वापस आना पड़ता है, अदरवाइज दे आर फ्री. तो जब वो ड्रेन निकलवाने को आते हैं, ठीक है, आई पुट इन अ वाटरप्रूफ ड्रेसिंग देयर, ताकि दे आर ऑल गुड टू स्टार्ट टेकिंग शावर. काफ़ी बार एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इटसेल्फ हम वाटरप्रूफ ड्रेसिंग करके देते हैं, तो दे कैन टेक अ शावर. So people are more comfortable, especially India, Bombay, people sweat a lot. So we prefer to do a lot of waterproof dressings. Correct. So they are comfortable. Okay. और फॉलोअप के when they'll come back for the follow-up, so एक initial follow-up हुआ था, फिर next follow-up में you remove the drain. I remove the drain and the same day reports usually आ जाते, तो I coordinate कि बार बार आना नहीं पड़े. Commute करना is also an issue and it's not just the patient, बाकी के relatives को भी छुट्टी लेनी पड़ती है. So it's a big issue. तो same day by I ensure that their appointment with the medical oncologist is also booked. तो same day पे वो medical oncologist से मिल के समझ लेते हैं आगे का क्या प्लान. तो then the radio chemo based on जो कीमो देते हैं उन्हें हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं. पुराने ज़माने में हम सर्जन्स ही सब कुछ करते थे, बट नाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड. सो लाइक मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहता है जो ये कीमोथेरेपी वगैरह डिसाइड करता है. कीमोथेरेपी हुआ, हार्मोन थेरेपी हुआ, इम्यूनोथेरेपी. कीमोथेरेपी में भी पुराने ज़माने में हम कीमोथेरेपी सब हाथ से देते थे,
तो अगर आप कभी एडमिट हुए हॉस्पिटल में, वो आईवी नहीं लगता है, हाथ सूजता है, हाथ में पेन होता है, तो कीमो के जो ड्रग्स होते हैं वो भी आईवी से जाते हैं। ओनली प्रॉब्लम विद कीमो का ड्रग्स इज ये थोड़े हायर ड्रग्स रहते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है। तो हम कभी कभी हाथ से देते हैं ना, तो किसी किसी पेशेंट को कभी कभी रेडनेस हो जाता है, ब्लैकनेस हो जाता है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आजकल वी पुट इन समथिंग नोन एज अ कीमोपोर्ट। कीमोपोर्ट एक छोटा सा डिब्बा रहता है जो हम यूजुअली क्लैविकल, जो हमारा ब्यूटी बोन रहता है, उसके नीचे डालते हैं। ऊपर स्किन रहता है तो इट इज हिडन। सो जैसे आप और मैं अभी बैठे हुए हैं, मुझे अगर कीमोपोर्ट है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं। जैसे मैं यूजुअली इंटरनल जुगुलर प्रेफर करती हूँ, तो नेक में से एक सपोर्ट लेते हैं, एक वेन पकड़ते हैं इंटरनल जुगुलर, एंड वो हार्ट तक जाता है। तो उसका एडवांटेज ये रहता है कि आपके हाथ अच्छे रहते हैं, यू आर कंफर्टेबल, आप आराम से काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हाथ में कोई अल्सर नहीं, कोई रेडनेस नहीं, कुछ नहीं। हर बार जब पेशेंट आता है कीमोथेरेपी के लिए, वो कीमोपोर्ट का स्पेशलाइज नीडल आता है, वो नीडल डालते हैं, उससे पूरा कीमोथेरेपी देते हैं, नीडल निकालते, पेशेंट कैन गो बैक। These chemopods have a lifespan of nearly 5 years. Okay, and हाँ, जब यूके में हम लोग थे तब immediately as soon as the chemotherapy was over, हम कीमोपोर्ट निकाल देते थे। बट इंडिया के अंदर all patients bear the own cost of the कीमोपोर्ट। फिर इंश्योरेंस कंपनी भी बार बार देगा नहीं हमें पोर्ट डालने के लिए, तो हम कम से कम 2 साल के लिए रखते हैं ये पोर्ट। क्योंकि हम जब भी कैंसर सर्जरीज करते हैं, कैंसर की वापस आने का रिस्क डेफिनेटली रहता है। पहले 2 साल में कैंसर के वापस आने का रिस्क बहुत हाई रहता है। इसके लिए पहले 2 साल में हम पेशेंट्स को हर 3-3 महीने में फॉलोअप को बुलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 5 years तक हम 6-6 महीने में बुलाते हैं, एंड उसके बाद साल में एक बार लाइफ। सो कीमोपोर्ट इज अ गुड ऑप्शन फॉर कीमोथेरेपी। काफ़ी बार अगर हमें पहले से पता है कि ये पेशेंट को कीमोथेरेपी लगने वाली है, तो मैं सर्जरी के टाइम पर ही कीमोपोर्ट डाल। ओह वंडरफुल। हाँ, सो पेशेंट को 2 बार ऑपरेशन थिएटर करेक्ट। नहीं आना पड़ता है। So that's another thing what we have, I think, upgraded. Frankly speaking, internationally जितना काम ब्रेस्ट में होता है, इंडिया में we are doing everything. So UK, US से हम कहीं पर भी lacking नहीं। Correct. हाँ, and it is like very thoughtful, right? You are already planning what is good for patient, thinking even 5 years down the line क्या क्या हो सकता है उसके लिए, आज की तारीख में सर्जरी कैसी करनी है, ये सारे डिसीजंस उसी टाइम पे लिए जा सकते हैं। तो जब फॉलोअप के लिए एवरी 3 months पेशेंट इज कमिंग बैक, एंड देन एवरी 6 months, एंड देन एवरी ईयर जब पेशेंट आ रहा है, उस फॉलोअप में एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो फॉलोअप के अंदर एक तो हम पेशेंट से उनकी कंप्लेंट्स पूछते हैं। सो बहुत बार लाइक इफ आई एम हैविंग अ यंग पेशेंट मेरा अगर बहुत ज़्यादा बोनी पेन्स कंप्लेन कर रहा है, यूजुअली उसे होना नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड समबडी हु इज एल्डरली, तो अगर ऐसा कुछ अबनॉर्मल कंप्लेंट्स करते हैं तो हम काफ़ी बार बोन स्कैन या कुछ करके देखते हैं, जानने के लिए कि उधर मेटास्टेसिस हुआ है। सेकेंड थिंग इज हम रूटीन चेकअप्स कराते हैं। जैसे हम काफ़ी बार रेडिएशन देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, तो बहुत बार बिकॉज रेडिएशन ब्रेस्ट पे हम देते हैं, थोड़ा बहुत चांसेस बिकॉज वो थायराइड वगैरह के एरिया तक टच होता है। काफ़ी बार पेशेंट्स का थायराइड प्रोफाइल डिरेंज होता है, तो हम एक TSH कराते हैं। फिर जब हम ब्रेस्ट बचा के सर्जरी करते हैं, जो बचा हुआ ब्रेस्ट है उसमें कैंसर आने का वापस चांस रहता है, प्लस दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर आने का चांस रहता है। तो हम ईयरली एटलीस्ट वी गेट अ मैमोग्राम डन। अगर ब्रेस्ट बचा के किया तो दोनों ब्रेस्ट का, नहीं तो जो ब्रेस्ट है उसका हम कराते हैं। एंड रूटीन लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ चेंजेस हो रहा है, तो बिकॉज ये पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हम इन्हें हार्मोन थेरेपी पे रखते हैं। जो ER/PR पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं, तो काफ़ी बार हार्मोन थेरेपीज जब हम देते हैं तो पेशेंट्स का कभी कभी कैल्शियम लो होता है, विटामिन D वगैरह लो होता है, तो वी चेक देम, वी कॉम्पनसेट देम। बट द मेजर थिंग इज एक्सरे मैमोग्राफी एटलीस्ट साल में हम एक बार कराते हैं पेशेंट्स का। एंड अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो सिम्टम वाइज भी डिसाइड, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, बोन स्कैन्स कराना है, और रूटीन CBC LFT वगैरह हम कराते हैं। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वुमेन देन, नो? हार्मोन थेरेपी जो मेल्स की ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, we have realized that most of them are hormone cancers. So they are ER/PR positive. So we give them. Oh, Yes, we give. okay. So the commonest drug जो इतने सालों से चल रहा था, tamoxifen, मुश्किल से आपको एक टैबलेट 2 रुपए या 3 रुपए की आएगी।
which serves very well for cancer protection. So post menopausal women के अंदर तो हम एनास्ट्रोजोल देते हैं, जो प्री मेनोपॉजल रहती है हम उनमें काफ़ी बार टमोक्सिफेन देते हैं. सो डिपेंड्स अपॉन, अगर उनका ERPR पॉजिटिव है तो हम उनको देते हैं. तो हम लेट्रोजोल जो देते हैं एक टैबलेट कैंसर प्रोटेक्शन के लिए, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बोन्स को वीकन अप करता है. तो हम पहले ही पेशेंट्स का बोन स्कैन्स करके चेक करते हैं कि उनका बोन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. अगर वीक बोन है, ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक है, तो हम नहीं देते हैं. एंड अगर ऑस्टियोपोरोटिक नहीं है तो वी स्टार्ट देम विद दैट टैबलेट, एंड उसके साथ उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है. विटामिन D वगैरह अगर लो है तो हम देते हैं. फिर देन वी हैव समथिंग ज़ोलेंड्रोनिक एसिड, जो बहुत बार ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यूज करते हैं. इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन कैंसर प्रोटेक्शन. वो सब भी हम देते हैं. Another important aspect is जब हम ये यंग फीमेल्स को ऑपरेट करते हैं, एज आई टोल्ड यू 20-22 ईयर्स, हम इनकी आगे की फैमिली लाइफ के बारे में भी सोचते हैं. तो इनफैक्ट नॉट जस्ट देम, मैं जब 30s में भी किसी फीमेल को ऑपरेट कर रही हूँ, मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ, अगर वो मैरिड है, बच्चे, आर यू प्लानिंग फॉर अ सेकेंड किड, थर्ड किड? अगर वो हाँ कहते हैं तो वी कॉन्टैक्ट आवर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. उनसे बात करके हम काफ़ी बार उनके ओवा प्रिजर्व कराते हैं. मैरिड फीमेल्स है तो हम एम्ब्रियो भी प्रिजर्व कराते हैं. वी फर्स्ट चेक AMH करके लेवल रहता है, वी चेक इफ इट्स गुड, तो वो सब भी हम हार्वेस्ट करके करते हैं. तो वंस आफ्टर अ कैंसर ट्रीटमेंट इज ओवर, इफ शी वांट्स टू प्लान अ फ्यूचर फैमिली लाइफ, शी कैन डू इट. Okay, that's good. And again, good part is men do not have to worry about. Yes, they don't have to worry. So men are comparatively, I can say, the blessed ones. Yeah, again, but still, ठीक है. Okay, so now, especially for cancer in women, we say that the first relative should make sure that they get screened, because we know that there is some chances कि उनके फैमिली में भी किसी को है तो उनको कैंसर हो सकता है. अगर मेन में होता है तो भी आप स्क्रीनिंग कराते हैं रिलेटिव्स? तो इट्स कंपल्सरी. अगर किसी मैन को हुआ है हम उनका जेनेटिक टेस्टिंग पक्का कराते हैं. एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न, हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है. लेस देन 50 के अंदर फीमेल को अगर है कैंसर, फिर ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है, एक ही फैमिली लिनिएज के अंदर, मतलब मम्मी मौसी वगैरह ऐसे है, एक को ब्रेस्ट है, एक को ओवरी है, तो उस केस में हम उनका जेनेटिक टेस्टिंग्स कराते हैं. आइडियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमारे पास क्लिनिक में बहुत बार लेडीज आती है जिसे हम कहते हैं एंजेलिना जोली इफेक्ट. तो बिकॉज एंजेलिना जोली गॉट अ प्रोफाइलैक्टिक मास्टेक्टमी डन बिकॉज वो BRCA पॉजिटिव टेस्ट हुई थी. बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास बीच में आ रही थी कि उन्हें टेस्टिंग कराना है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, अगर आप जिन पेशेंट को आपके घर में कैंसर हुआ है, अगर वो जिंदा है तो आपको उनका पहले जेनेटिक टेस्टिंग कराना चाहिए. अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो फिर घर में जितनी फीमेल्स है उनका जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए. रैंडमली गेटिंग इट डन डज नॉट हेल्प, यू आर ओनली वेस्टिंग योर मनी. तो जो इंडेक्स पेशेंट है, हम कहते हैं पहले आप उनका कराइए, वो पॉजिटिव है तो फिर बाकी लोगों का करने में मतलब है. हम इतना बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स ओनली 5 to 10% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर्स जिनमें कुछ हमें जेनेटिक रिलेशन मिलेगा. करेक्ट. एंड ब्रेस्ट एंड ओवरी गो हैंड इन हैंड. सो हम जब भी टेस्ट करते हैं तो यूजुअली द कॉमनेस्ट प्रोफाइल विच वी यूज इज हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर प्रोफाइल, जो हम जेनेटिकली टेस्टिंग करते हैं. सो अगर 5 to 10% में जेनेटिक टेस्टिंग इज एप्लीकेबल, बाकी 90% वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द मैमोग्राफी. एंड गुड. एंड एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर में वी हैव पैप स्मीयर, बट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इट्स अ मैमोग्राफी दैट इज Mammography is basic. हाँ. सोनोग्राफी फॉर यंगर एंड अदरवाइज मैमोग्राफी. That's great. और मेन में रिलेटिव्स को कब कर लेना चाहिए? मतलब अगर जेनेटिक टेस्टिंग किया हमने पेशेंट का, एंड इफ इट इज जेनेटिक प्रीडोमिनेंट या जेनेटिक प्रीडोमिनेंट, तो उनके घर की जितनी फीमेल्स हैं उनका हम करते हैं. इन मेन, मतलब अगर पापा को है तो क्या बेटे को भी कर? आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. आई विल हैव टू रीड अप एंड चेक इट कि मेन के अंदर मेन का ये क्या प्रोटोकॉल है. एटलीस्ट अगर कोई मेन पॉजिटिव टेस्ट होता है तो हम फीमेल्स को कराते हैं. That's what I said. Now we are a little ignorant. Yeah. I'll check that too. Yeah. Okay. Any very, very interesting, like you talked about one of the patient who's 70-year-old. Any younger patient that you have seen? What's the most youngest age that you have operated men? No, they have all been 70s and 80s के uncles were. Okay. And women you have operated as young? As young as 20, yes. Okay.
So while we discuss so much about breast cancer in men, and we talked about self-breast examination and things, as a surgeon, you have seen girls as young as 20, as old as any. क्या मैसेज देना चाहती है आप लड़कियों को, स्पेशली क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉज हो गया है अभी, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में. तो व्हाट यू वांट टू टेल गर्ल्स, हाउ टू either detect early, or what do you want to say? माई मैसेज टू देम वुड बी ओनली, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है. वॉट वी हैव इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर अर्ली डिटेक्शन. जस्ट लीड अ गुड हेल्दी लाइफ. प्लीज एक्सरसाइज. गेट अवे फ्रॉम ऑल द जंकीज so that you can lead a healthy life. Patients have got married after being diagnosed with cancer. Surgery किया हमने सब कुछ. They've got married. फिर so I have a lot of attachment for these 20-22-year-old girls जिनका diagnosis हुआ है. एक ऑस्ट्रेलिया गई है पढ़ने को. At present, after I go back to Mumbai, and I have a patient 10 weeks pregnant. I knew it was breast cancer, but मुझे at least documented कुछ तो चाहिए, ultrasound and do her biopsy. But at least that girl has a sensibility. When I spoke with her, she asked me upfront, मैडम क्या है? I said yeah. She told me मैडम मुझे एक ही प्रॉब्लम है, जो है उसको मैं फेस करूँगी. मुस्लिम फीमेल. She told me मैडम जो है मैं फेस करूँगी, मुझे खाली एक ही प्रॉब्लम, मैडम मुझे थोड़ा पैसे का. I said ठीक है, that I'll help you out. But you tell me straight. So I'm very clear with my patients. जो प्रॉब्लम है मुझे बोलो. Because frankly speaking बहुत सारे NGO सपोर्ट करते हैं. So I have an NGO जो मुझे हर एक केस का 30,000 देता है. And frankly speaking मेरा डायरेक्ट पेशेंट. I have hospitals where I can operate at lesser rates. तो I tell them जो प्रॉब्लम है बोलो, we'll manage it up. क्योंकि इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही कम है इंडिया में. अभी तो कोविड के बाद लोगों के पास बहुत इंश्योरेंस है. सो इफ यू आस्क सम एनीबडी ना कि इंश्योरेंस है क्या, वो एक आइदर वो अपफ्रंट बोलेगा मैडम 1 लाख का है, 2 लाख का है, हो जाता है. उसमें हम कहीं ना कहीं पे सर्जरी बैठा देते हैं. रेडिएशन में महाराष्ट्र के अंदर ऑरेंज राशन कार्ड है तो आपको रेडिएशन फ्री हो जाए. ओके. सो दैट्स हमने हमारा ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के नंबर्स बढ़ाए हैं. So there are a lot of things we can actually manage if you wish to manage. Only thing is हमारा पेशेंट ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए. अगर सेंसिबल इंसान है मैनेज करके देखते हैं. So क्या what is that orange card you were talking about? so now below poverty line पे कुछ तो ऑरेंज राशन कार्ड होता है. So with that there are certain centers which will give you radiation full free. Okay. So otherwise 1.75 to lakhs तक जाता है. So I usually send my patients to HCG. HCG full चलता है तो बैथनी करके थाना में फ्री. तो अगर रेडिएशन फ्री हो रहा है, इफ यू टॉक विथ मी अबाउट कॉस्ट फैक्टर्स, मैस्टेक्टमी, BCS, तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी में पेशेंट्स का तभी करती हूँ अगर वो पेशेंट हाँ बोलता है रेडिएशन ले. क्योंकि अगर उसने रेडिएशन नहीं लिया तो माई सर्जरी इज अ फेलियर. Okay. We were talking about the surgery, different options that are there for the surgery. We also talked a little bit about the chemotherapy. So we talked about mastectomy and the breast conservative surgery. So we conserve the breast. So what's the difference between that? Like how, when to make what choice? Like, so mastectomy जो रहता है ना, usually we offer to those females जिनका एक तो कैंसर बहुत बड़ा है या कैंसर पूरे ब्रेस्ट में इतना स्प्रेड आउट है कि हम उनका ब्रेस्ट बचा के सर्जरी नहीं कर सकते हैं, या वो औरतें जिनके पास रेडिएशन लेने की फैसिलिटी नहीं है. okay. लाइक मेरे पास इंटीरियर से भी काफ़ी औरतें आती हैं जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे पास रुक नहीं सकती हैं. तो उन्हें हम ये ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी नहीं करते, क्योंकि एक बार हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, सो टू गेट रिजल्ट सिमिलर टू मैस्टेक्टमी, रेडिएशन इज कंपल्सरी. एंड जब हम रेडिएशन कहते हैं नियरली 5 days a week for 5 weeks, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. अभी फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर न्यू ट्रायल्स आए हैं जिसमें हम सिर्फ 5 दिन रेडिएशन दे रहे हैं. बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को 4 हफ्ता या 5 हफ्ता they have to stay in Mumbai, take the radiation and go back. So radiation के लिए पेशेंट को एडमिट नहीं होना पड़ता है, सेंटर पे जाना रहता है. नियरली 2 मिनट का काम होता है. वो पेशेंट्स को लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो लाइट देते हैं वो एरिया को. बिफोर डूइंग दिस हमारे जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट का CT स्कैन करते हैं, ट्यूमर किधर लोकेटेड था उसके हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं. लेफ्ट साइड में है तो काफ़ी बार उनको लंग, हार्ट वगैरह सबका बहुत ध्यान देना पड़ता है. तो देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जिसके हिसाब से वो पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी देते हैं. इम्पॉर्टेंट इज अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी के लिए ऑप्ट कर रहा है, मैं
उनसे एटलीस्ट 4 या 5 बार कंफर्म करती हूँ कि वो रेडिएशन लेने वाले हैं या नहीं, बिकॉज अदरवाइज माई ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी फेल्स। बिसाइड्स दैट, अगर पेशेंट का कैंसर लिम्फ नोड तक स्प्रेड अप है तो रेडिएशन लगने वाला है। ओके, अगर कैंसर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो भी रेडिएशन लगने वाला है। सो दीज आर मेनली द 3 कंडीशंस जिसमें रेडिएशन लगने वाला है। तो दिस अगेन इन्वॉल्व्स एडिशनल कॉस्टिंग्स। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट मेन, उनको भी हम रेडिएशन? सी डिपेंड्स उनका कैंसर कौन सी स्टेज पर है। तो प्रोटोकॉल वाइज मेन एंड फीमेल कैंसर इज द सेम। अगर लिम्फ नोड तक स्प्रेड अप है तो अगेन द क्वेश्चन कम्स ऑफ रेडिएशन। करेक्ट, उनको भी लेना। okay, and this is like a one time radiation, or are there one time radiation that's required, and more into when we preserve the breast that time? ब्रेस्ट अगर हम प्रिजर्व करते तो रेडिएशन इज Compulsory. अगर आप मैथ्स का इक्वेशन बात करो तो ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी प्लस रेडिएशन इज इक्वल टू मास्टेक्टमी। Okay, सो इट्स कंपल्सरी। okay, got it. And usually how much it will cost, like किसी patient के लिए? Of course it differs from what kind of a hospital location, all those things, but एक आम आदमी को कितना खर्चा आएगा अगर सर्जरी करनी है? Approximately anywhere between 1.5 to 2.5. So महाराष्ट्र गवर्नमेंट में there is a scheme, ऑरेंज राशन कार्ड अगर आपका है तो there are certain centers which will do it for you in nearly free. Radiation free? Yes, the entire radiation goes free. So lot of times we ask the patient, अगर कोई गरीब पेशेंट है जो लगता है अफोर्ड नहीं कर सकता है, या इंडिया के अंदर लोगों के पास बहुत छोटे छोटे मेडिक्लेम्स रहते हैं, तो lot of times they can utilize that facility and get their radiation done because it's an additional cost. काफ़ी बार अर्ली ब्रेस्ट कैंसर वाले भी पेशेंट्स बिकॉज रेडिएशन का कॉस्टिंग आएगा दे डोंट गेट इट। Correct, हाँ. ऑरेंज राशन कार्ड definitely gives them that advantage. Correct. Otherwise it is covered under insurance. Yes, it's 100% covered under Okay. insurance. So there is something known as an immunotherapy. So पहले तक जब HER2 new cancers थे, we did not have an answer. So now there are drugs like trastuzumab, जो which is a part of the immunotherapy. कुछ mediclaims cover up नहीं करते insurances, but most of them cover it. But उसके तो generic products are available, no? Just now we have अभी just because patent हटा है, Intas and all have come up with low cost trastuzumab, and the ways पहले the treatments were very costly. Like I remember जब मैं पढ़ाई कर रही थी टाटा के अंदर, when I was there studying, तब हम पेशेंट को कहा करते थे कि घर बार बेच के मत कराना ये ट्रीटमेंट। तो I'm talking about 2012. It used to be that costly, and now the rates have come down so much that आप आराम से you can manage it. Your chemo is in nearly 5. That's अगर trastuzumab positive, HER2 new positive आता है तो उस cases के। Any other treatment that is newer? So now even in patients जिनका metastasis हो चुका है, we have a newer concept of oligometastatic. मतलब अगर सिर्फ एक single organ involved है या एक organ के अंदर अगर सिर्फ 5 sites involved हैं, तो उस केस में भी हम क्योर पे टारगेट कर रहे हैं। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कैंसर में कहीं पर हो रहा है तो ब्रेस्ट कैंसर में हो रहा है। वी हैव न्यूअर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, लॉट ऑफ न्यूअर थिंग्स कमिंग अप। सो जेनेटिक टेस्टिंग्स हमारे इसमें काफ़ी प्रिवेलेंट है। मोस्टली वी टॉक अबाउट BRCA1, BRCA2. So lot of times we let them complete their family life. Then we do something known as prophylactic mastectomy. If you've heard about Angelina Jolie, she had it done. फिर ovaries, we are removing ovaries. So this is what's happening in breast. You were telling me about like people are aware and they get their genetic testing at a very early age, and if they are, you do that follow up, something you were explaining. Yes. अगर कोई पेशेंट को पता है कि वो BRCA पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर ये लड़की 20-25 साल की है, अगर मैं उसका दोनों ब्रेस्ट निकाल रही हूँ, ओवरी निकाल रही हूँ, व्हाट्स गोना बी हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट? सो ये जो पेशेंट्स रहते हैं इनका हम स्क्रीनिंग करते हैं। सो एवरी 6 months मे बी मैम, नेक्स्ट 6 months I'll do an MRI breast. अगर कुछ ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है, वी कैन पिक इट अप अर्ली। एंड एज फार एज ओवेरियन कैंसर इज कंसर्न, मोस्टली हमें ओवेरियन कैंसर लेट एजेस में मिलता है। तो जस्ट अ सिंपल USG pelvis helps us to detect them early. तो अगर कोई पॉजिटिव भी है, हमें पता है, तो वी काउंसिल देम कि डोंट वेट टिल 35-40 years to start up your family. Please get married soon. Okay, India में marriage is legal. This is what I'm talking about, get married soon.
Otherwise, we tell them कि please complete your families, whether you want to plan up 1 baby, 2 babies या जितने. Go ahead, plan them early. So at a later date, अगर हमें कुछ detect होता है, can go ahead with removing the ovaries, doing prophylactic mastectomies. So I have young 23, 24-year-old girls. So we've operated them for cancers. And we have realized that they are positive. They are genetically positive. So we don't go upfront. And though we sit down and discuss with them कि future में ये plan रहेगा हमारा, we advise them that please complete your family life and then come. हाँ, बस फॉलो अप करते रहो. तो आपने इवन अर्ली स्टेज पे भी अगर जेनेटिक किया है और अगर पॉजिटिव है तो इट इज नॉट दैट कि जिनका पॉजिटिव है उन्होंने मास्टेक्टमी करना चाहिए इलेक्टिव, ऐसा नहीं है. पैनिक फेज. सिर्फ आपको ये रियलाइजेशन आना चाहिए कि आपका रिस्क लेवल नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है. अगर टेस्टिंग के बीच में कुछ छोटा पिकअप होता है तो वी कैन कंजर्व द ब्रेस्ट एंड डू द सर्जरी. हाँ, एंड अगर शी इज़ कंप्लीटेड अ फैमिली लाइफ, शी इज़ फाइन, तो मास्टेक्टमी के साथ सेम टाइम पे वी कैन डू अ रिकंस्ट्रक्शन. सो माई मैसेज थ्रू हेल्थ कम्यून टू ऑल फीमेल व्यूअर्स वुड बी, प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए अपने ब्रेस्ट हेल्थ को. रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए. आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स मेक इट अ पॉइंट कि आप अपना मैमोग्राफी करा रहे हैं. एंड इफ कुछ डिटेक्ट होता है, डोंट इग्नोर इट. गेट योर सेल्फ चेक्ड कम्प्लीटली एंड कन्फर्म कि इज देयर एनीथिंग टू वरी और नॉट. आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सो प्लीज़ यूटिलाइज देम. एंड फॉर मेन आई वुड लाइक टू टेल देम, आपको भी ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो अगर आप भी कुछ नोटिस करते हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए और आपके पास के ही किसी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को मिलिए.